Assalamu alaikum all of you. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today my topic is work. Those students who want to take an exam of PTE, ESOL, Cert Language, TOEFL and IELTS, this is a very important and a very indispensable topic for those students who want to appear for any exam. So if you know all these points which I have given on the screen, so you can describe very easily whatever you want to describe. Now I am going to talk about these points which I have given on the screen, and if you want to change something, so you can change and add according to your work. Well, I have been running my school and academy because this is my own business. Along with I have been teaching IELTS students. I want to talk about responsibilities because I am a principal, so that's why I have a lot of responsibility and liabilities. So first of them is meeting with the parents and staff. Meeting with the parent, it is a very important for my school and also for those boys who are studying in my school. In this meeting, I have to provide the student's result, and also I have to provide and tell the student's study to the parents so they can know about their children's study. Meeting with the staff, this is also very essential for my school and for the boys who are studying in my school. Definitely I like very much and I enjoy very much to give the writing to the students and to talk about etiquettes. Well, if I talk about spending time on my work, that is a very interesting. I like very much to spend time on my work. Especially I want to tell 5 hours I spend in my school and 3 hours I spend in my academy. Well, an opportunity is given to me in future to do another job. I would like to conduct an election for my nation. I want to serve whatever I can do the best for it. This is my longing in future. Getting job in my country, there are different ways. One of them is you have to leave your CV in the office if you want to do job there. Second of them, you can take an exam for government job, and you can also apply through the internet. And you can also apply on different website for your job. A good thing for a job, you have to be loyal with that company and you have to do hard work. There are two kinds of things which I dislike during a job. First, to waste time with idle talk, and second of them is to smoke during a job. At last, I would like to request all of you, please subscribe my channel, share it, like it and press the icon bell so that you can watch my all lecture which I have given on the YouTube channel, that is WSH Sherry, and also those lecture which I have to launch yet you can see later. So please like it, share it and subscribe it. Thank you very much. Do you have special meaning of your name? Definitely I have a special meaning of my name. My name meaning is kind. Question number 7 is, who is your best teacher? My best teacher, respected Sir Ijaz. His way of teaching is outstanding and it is superb. Not only the student like him very much, but all the teacher give him respect. I would like to say he is not only the hardworking teacher, but he has a good nature. That's why with teaching, he educates the students about ethics and etiquettes. The question number 8, who was your favorite teacher? My favorite teacher was Sir Ali. When I was in matric, he was a new teacher in the government school and he was a young teacher. The way of teaching in mathematics, that was excellent, and his style in teaching in mathematics, that was very easy. So that's why all the students like. And I would like to say, along with teaching, he was a good reformer and he trained the students for a good behavior. And I would like to say we should respect our old teacher. Question number 9, what does your father do? Basically, my father is a shopkeeper. He has grocery shop and he has been running this shop since 1980. Question number 10,
What do you do in the evening time? Well, I would like to do 5 things in evening time. First, I have to eat dinner with my family member. Then, watching talk show and news. After that, spending time in chatting and sometime playing game with my family member. Furthermore, I would like to read different kind of books. At last, before sleeping, I have to offer prayer. नंबर 11 मैग्नानिमस, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सखी या मेहरबान, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है जेनरस, हाई माइंडेड एंड काइंड। जैसे हम कह सकते हैं कि यू आर वेरी मैग्नानिमस, आप बड़े सखी हैं या आप बड़े मेहरबान हैं। नंबर 12 लॉन्गिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसका मतलब मकसद, ख्वाहिश, आरजू के माना में है, और इसका ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है डिज़ायर, विश, लस्ट। जैसे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ योर लॉन्गिंग, कि आपका मकसद क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है। नंबर 13 है मेरिटोरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है उर्दू में काबिल सताइश, काबिल तारीफ़। जैसे इंग्लिश में इसका मीनिंग है प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, क्रेडिटेबल, ऑल हैव सेम मीनिंग, सबके एक जैसे मतलब है। किसी की कोई तारीफ़ करनी हो तो उस वक्त हम मेरिटोरियस का वर्ड बोल सकते हैं। और नंबर 14 है रिसेशन। रिसेशन जो है उर्दू में हम इसको कहते हैं कसाद बाज़ारी। जैसे इंग्लिश में यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये जैसे इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन है, टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर एक मईशत के अंदर एक डेडलाइन आ जाता है, एक कसाद बाज़ारी आ जाती है, उसको हम कहते हैं रिसेशन। अगर पूरी तरीके देखनी हो तो पीरियड ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस। 15 है जीडीपी। जीडीपी जो है ये एब्रीवेशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उर्दू में इसकी मतलब लेना हो तो मुराद ये होगा मुल्क की जो मजमूई पैदावार है उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसकी डेफिनेशन अगर देखनी हो तो इज़ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन आ कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो ये है जीडीपी। नंबर 16 है विद फ्लाइंग कलर्स, और बड़ा अच्छा इसका मीनिंग है, बड़ा अच्छा वर्ड है, ये फ्रेज़ है बड़ी कामयाबी के साथ। उर्दू में इसके इंग्लिश में कहेंगे वेरी सक्सेसफुली। आगे मैंने इसकी एक एग्जांपल, एक सेंटेंस सेट किया है, शी पास हर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, वो उसने अपना इम्तिहान बड़ी कामयाबी के साथ पास किया। नंबर 17 है लिटरली, ये एडवर्ब है, इसका मतलब है एग्जैक्टली, यानी ऐसे ही है, ठीक है। आगे मैंने फिर इसकी एक सेंटेंस दिया है। नंबर 18 है मॉनेटरी, ये एडजेक्टिव है, पैसे या करेंसी के मुतालिक जो हो उसको हम मॉनेटरी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में मीनिंग है रिलेटिंग टू मनी और करेंसी, तो इसको हम मॉनेटरी कहते हैं, यानी पैसे के मुतालिक। नंबर 19 है, बड़ा अच्छा फ्रेज़ है और इडियम भी है, बड़ा अच्छा ये इडियम है, बिजी बी, यानी बहुत मसरूफ़, वन हु इज़ वेरी बिजी बी एंड एक्टिव, यानी वो शख्स या कोई भी जो बड़ा मसरूफ़ हो, एक्टिव हो, उसको हम बिजी भी कहते हैं। जैसे मैंने आगे एक एग्जांपल भी दी है, एक सेंटेंस, माई मोम इज़ आर रियली बिजी बी अराउंड रमज़ान, रमज़ान के दिनों में मेरी मोम जो है बहुत बिजी होती है। और फिर आगे एक इडियम है और वो है बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग जो है इसका मतलब है जल्द ही, इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा सून या इन द नियर फ्यूचर।
और इन अ शॉर्ट टाइम। लास्ट पे तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब का चैनल है यहाँ WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकन बेल पर प्रेस करें, ताकि तमाम मेरी वीडियो जो है 185 के करीब मेरी वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें बहुत सारी ग्रामर की वीडियोस मेरी हैं और इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश पे बहुत सारी वीडियो हैं, आइट्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें तीनों पार्ट हैं। और इसी तरह कोई सर्ड लैंग्वेज करना चाहता है या PT करना चाहता है, उसके लिए वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ आपको इस तरह के तमाम लेक्चर वहाँ से मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और आगे सब्सक्राइब करें। इस तरह फेसबुक जो पेज है इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न वर्ब पे बात करने जा रहे हैं, वो है विल। विल जो है ये फ्यूचर के मीनिंग में आता है और फ्यूचर का ये मीनिंग देता है। और फ्यूचर के अंदर जो एक्सपेक्टेशन इंसान की होती हैं, जो इंटेंडेड इंसान के होते हैं, या इंसान फ्यूचर के बारे में थिंकिंग कर रहा होता है या उसके प्लान फ्यूचर के बारे में होते हैं, तो उस जब ये चीजें हों तो उस वक्त हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ये मुस्तकबिल का माना देता है कि वो फ्यूचर में क्या करने जा रहा है या क्या करेगा। और इसका तरीकाकार ये होता है, अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम IB के साथ शेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम जितने भी प्रोनाउंस हैं, I है, we है, he है, she है, it है, सब के साथ हम विल ही यूज करेंगे। और शेल जो है ये ऑलरेडी ये खत्म हो चुका है। अब हम तमाम प्रोनाउन के साथ जो फ्यूचर के अंदर हम विल ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है। और विल के साथ जो है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है हम वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बेस फॉर्म भी, वर्ब की जो बेस फॉर्म है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए विल के बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हम इसका सेंटेंस को बनाएंगे। और चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ 5 जो टेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे बनाए हैं और इसको हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन क्या है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह तवज्जो से सुने और इसको समझें और फिर जो एक कम से कम आप इसकी ट्रांसलेशन भी लिखें ताकि बाद में भी ये आपके काम आए। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है आई विल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा। ये इसका इंटेंट है, इंटेंशन है इसकी, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फ्यूचर में ऐसा करेगा, प्लान कर रहा है, तो फ्यूचर की बात है। आई विल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा। तो एक की ट्रांसलेशन उर्दू में जरूर लिखें या हिंदी में जरूर लिखें ताकि आप बाकी जो है आप आसानी से उसकी ट्रांसलेशन कर सकें। उसके बाद वी विल प्लांट ट्रीज, हम पौधे लगाएंगे, हम पौधे लगाएंगे। वी विल प्लांट ट्रीज, हम पौधे लगाएंगे। प्लांट जो है ये वर्ब भी यूज करते हैं इसको, पौधे लगाना, और इसको नाउन भी यूज करते हैं पौधे। तो यहां मैंने वर्ब यूज की है, बेस फॉर्म यूज की है। उसके बाद शी विल टीच इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ाएगी, वो कॉलेज में पढ़ाएगी। तो ये प्लान किया है, ये इसने इंटेंडेड है कि ये करेगी। दे विल शेयर द फूड, वो अपना खाना आपस में शेयर करेंगे, आपस में तबादला करेंगे, आपस में मिलजुल के खाएंगे। दे विल शेयर द फूड। ही विल थिंक पॉजिटिव फॉर एवरीवन, वो ही विल थिंक पॉजिटिव फॉर एवरीवन, वो हर एक के लिए मुस्बत सोचेगा। तो यहाँ आपने देखा कि फ्यूचर का मीनिंग इसमें पाया गया है और फ्यूचर में हम विल का इस्तेमाल करेंगे और बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपको अच्छी तरह आ जाए और इसको सबसे पहले आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, फिर इसको आप राइट भी करें, इसके नोट्स भी बनाएं
और ताकि आप लोग इस मॉडल वर्ब को अच्छी तरह सीख सकें। और इसके साथ साथ लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो मेरा YouTube पे चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पर जहां ऑल है उसको प्रेस करें। मेरी बहुत सारी वीडियो जो मॉडल वर्ब पे हैं वो आ चुकी हैं, मेरे ग्रामर के जो लेक्चर हैं टेंसेस के ऊपर वो आ चुके हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर जो हैं 30-40 के करीब स्ट्रक्चर हैं वो आ चुके हैं, डिफरेंसेस हैं वो आ चुके हैं, पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस हैं वो आ चुके हैं। बहुत सारे लेक्चर मेरे YouTube पर आ चुके हैं, आप वो वहां नोट भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं ताकि आप अपनी ग्रामर को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें। इसी तरह फेसबुक पर जो मेरा पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन के नाम से। वहां आप जाकर उसको भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वहां से भी लेक्चर नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।